Good morning, students. This is your EVS class, and today we will be doing exercise number D and E of chapter number 13, The Story of a Wheel. So, children, we have finished the chapter and done exercise number A, B, and C also. Now we will be doing exercise number D, that is short answer questions, and exercise number E, that is long answer questions. So I will discuss here. I have written the answers for you. You can copy it. I will give you the snapshots of these answers in the class group also. So here I will discuss the answers. The first question was saying, where did early man live? So we have discussed in the chapter and learned that early man have no place to live as he was traveling from place to place. ठीक है, तो he used to live in caves. Okay, और कभी कभी वो पेड़ों के ऊपर भी रहते थे. तो आई हैव रिटन हियर ओनली caves और on the trees. So early man lived in caves or on the trees. This is the answer number 1. Now we come to the next question, number 2. Why did early man move from place to place? Early man moved from place to place in search of food and shelter to live. ठीक है, वो हमेशा एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करता रहता था. क्यों? क्योंकि उसको हर जगह पे खाना, सारे हमेशा खाना तो मिलता नहीं रहेगा एक जगह पे, क्योंकि खाना तो वो कैसे खाता था? शिकार करके. मीन्स ही यूज टू हंट द एनिमल्स एंड ईट देम. ठीक है, तो फॉर इन सर्च ऑफ फूड ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और दूसरी बात ये भी थी बच्चों, जहाँ अगर वो एक जगह रहता था तो वो जंगलों में रहता था ना, तो एक जगह अगर वो रहने लगेगा तो बाकी जंगली जानवरों को उसके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, ये यहाँ रह रहा है. तो जंगली जानवरों की एक स्पेशलिटी होती है, क्वालिटी होती है कि वो बहुत दूर से सूंघ लेते हैं. ठीक है, तो वो जब सूंघ लेंगे कि वो एक इंसान वहाँ पे रह रहा है तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं. तो इसलिए वो हर दूसरे तीसरे दिन वो अपनी जगह को बदलते रहते थे. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Give a few examples of objects with wheels. So, children, there are many examples uh, of the objects with wheels. So, I have written the answer as the objects with wheels are called vehicles. ठीक है, and for example, bullock cart, motor car, motorcycle, bus, scooter, bicycle, etc. ठीक है, if you want to write the examples of your own, you can also write or add more to this answer. ठीक है, so we move to, so this ends your exercise D. Now we move to exercise E. So this is your exercise E, chapter 13, and this is long answer questions. So there are two questions in this exercise. The first one is, describe the potter's wheel. Now you have drawn the diagram of potter's wheel also in your EVS copy. If you have not drawn it, please do it so. So I will tell you the answer. A potter uses a special wheel to make most of his pottery. The potter's wheel consists of a round, flat, wooden or metal surface that moves when the potter shapes clay on it. ठीक है, तो as you have seen in the diagram, there was a wheel, it was rotating. और उसको वो कैसे रोटेट करता था बच्चों? एक उनके पास एक वुडन स्टिक होती थी, तो वो उस स्टिक से उस व्हील को गोल गोल घुमाते थे बहुत तेज़ी से. तो जितनी स्पीड से वो व्हील घूमेगी उतनी जल्दी वो और अच्छा पॉट बनेगा. और वो पॉट किस चीज़ का होता था? मिट्टी का या क्ले का. क्ले, व्हाट इज़ क्ले? चिकनी मिट्टी. ठीक है, तो दिस व्हाट इज़ क्ले? क्ले कहाँ से मिलता है आपको बेटा? ये भी आपको रिवर से ही मिलता है. जैसे आपको सैंड मिलती है, ठीक है, और आपको सैंड आपको वहीं से मिलती है ना,
रिवर बेड से मीन्स रिवर के नीचे, वैसे ही आपको क्ले भी मिलता है। तो उसी का यूज़ करके वो लोग, और डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके वो लोग पॉट्स बनाते थे, और अभी भी बनाते हैं। अभी भी वी यूज़ स्मॉल कप्स जो आते हैं ना, जिनको हम लोग कुल्हड़ बोलते हैं हिंदी में, वो भी पॉटर्स व्हील से ही बनते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do we say that a wheel was a very important invention? Now, for this answer, there is a lot we can discuss on this answer, but I have written a short, बहुत ही कम मैंने लिखा है. For the exam point of view, you can write, the wheel was a very important invention because we use it most of the machines. We use it in most of the machines which we use in our daily life. For example, car, bicycle, train, etc. So, bachcho, I will discuss it. Wheel, why the wheel invention was very important? As in the starting of the chapter also I have told you, अगर व्हील नहीं होती तो क्या आज हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाते? नहीं कर सकते थे। कोई भी चीज़ आज जो मूव कर रही है सब व्हीकल्स पे मूव कर रही है, और व्हीकल्स किस पे चलते हैं? व्हील्स पे चलते हैं। तो व्हील्स ही अगर नहीं होते तो क्या ट्रांसपोर्ट होता? नहीं होता। क्या इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा पाता? बिल्कुल नहीं जा पाता, ठीक है। आज भी वो पैदल ही चलता रहता और बहुत समय लगता उसको। तो व्हील के इन्वेंशन से टाइम टाइम कम यूज़ होने लगा, ठीक है। कहीं भी जाना है, लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर जा सकते थे, कम टाइम में जा सकते थे, और सेफ्टी, हाँ, आपको जंगलों में नहीं जाना है, अब आपके पास रोड्स हैं तो सेफ्टी हो गई आपके पास, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप अपनी कार में बैठिए आराम से और जा सकते हैं कहीं भी जाना हो। सो टाइम की बचत हुई, और सेफ्टी हुई, और आप बहुत ज़्यादा सामान आपको ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो वो भी आप ले जा सकते हो, ऑन लाइक लॉरीज़ और ट्रक्स और ट्रेन्स, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी हेल्प हुई। तो दीज आर ऑल वाई दिस इज़ ऑल द थिंग्स वाई व्हील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in our daily life, and why it was a very important invention also. So children, this ends your exercise E also, and the last one is HOTS, HOTS, और इसके बारे में मैंने क्लास ग्रुप में कल ही डिस्कस कर लिया था। Can you imagine why traveling on land was more difficult than traveling on water? Traveling on land means you have to, this topic is related when there was no invention of wheel took place. जब आपका invention of wheel नहीं हुआ था, उससे पहले का ये टॉपिक है कि जब अगर आपका इन्वेंशन ऑफ व्हील नहीं था तो आप लैंड पे कैसे चलते थे? पैदल चलते थे, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और वाटर पे ट्रैवल करना, वाई इट वाज इजी? बिकॉज वाटर में, जैसे कि रिवर में आपको ट्रैवल करना है तो आप रिवर पे राफ्ट का यूज़ करते थे, और राफ्ट का मैंने वीडियो भी भेजा था कल आपको। उस पर आप कोई भी सामान या खुद भी बैठ सकते थे, और वो रिवर के फ्लो डायरेक्शन में बह सकते थे आप उसके साथ, और वो जिधर रिवर का डायरेक्शन फ़्लो कर रहा है आप उसी डायरेक्शन में जा सकते हो, और जितनी स्पीड से वो फ़्लो कर रही है रिवर उतनी स्पीड से आप जा सकते हो, और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली अपने आप बहते हुए चले जाओगे। सो दिस वे यू कैन ट्रांसपोर्ट योर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, बट एक डिसएडवांटेज ये हो सकता था इसमें कि रिवर अगर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है या ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में ही जाओगे। अगर आपको वेस्ट में जाना है और रिवर ईस्ट में फ़्लो कर रही है तो आप नहीं जा सकते उस पर, ठीक है। तो उसके लिए आप दूसरी चीज़ों का यूज़ करते थे, तभी तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी, और तभी तो व्हील का इन्वेंशन हुआ बाद में। So children, I end up this video here. If you want to ask any question, you can ask me in the class group. And from the next time, we will be starting the new chapter. So I end up my video here. Thank you, children.